عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ. خوش اخلاقی اور احترام اور خدمت یہ آپ کا انتہائی اہم کیریکٹر کا حصہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا اسلام آباد میں جدید ترین پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح. مختلف اداروں کی خدمات عوام کو ایک ہی چھت تلے فراہم ہوں گی. وزیر اعظم نے مرکز کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا. جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے تحفہ ہے. آذربائیجان کے دورے کے دوران باکو میں آسان خدمت مرکز کا مشاہدہ کیا تھا وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آذربائیجان کے وفد کی ملاقات. آئندہ مرحلے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آسان خدمت مراکز بنائیں گے. اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام میں معاونت پر آذربائیجان کے مشکور ہیں. آسان خدمت مراکز میں خدمت بین الاقوامی معیار کے مطابق فراہم کی جائیں گی. ہر سہ ماہی میں تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹ کروایا جائے گا. وزیر اعظم پائیدار ترقی کے لیے علاقائی امن و سلامتی ناگزیر. پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع خطوں کو جوڑنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سرمایہ کاروں کے لیے مؤثر پلیٹ فارم ہے. زراعت، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، لاجسٹکس اور سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. بحرین کے ساتھ اقتصادی تعاون اور ادارہ جاتی روابط بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. صدر آصف علی زرداری کا امن نامہ میں بحرین اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ سے خطاب. صدر آصف علی زرداری اور بحرین کے وزیر داخلہ کی منامہ میں ملاقات. سیکیورٹی، انسداد منشیات اور انسداد دہشت گردی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. مشترکہ سیکیورٹی ترجیحات سمیت علاقائی سلامتی کے لیے عملی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. بحرین نے وزیر داخلہ کی پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کے کردار کی تعریف. منظم جرائم، منشیات اور دہشت گردی سے لاحق خطرات کے خلاف مضبوط کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق. سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں. بھارتی حمایت یافتہ 13 خارجی دہشت گرد جہنم رسید. منو میں 8 اور ضلع کرم میں 5 دہشت گرد مارے گئے. عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے ساتھ ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات. وزیر اعظم کا ایک چین پالیسی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. دونوں ملک سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. وزیر اعظم کا سی پیک کے اگلے مرحلے کے بروقت نفاذ کی ضرورت پر زور. صدر شی جن پنگ اور چین کی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. پاکستان اور چین کا تعلق ہر حال میں غیر متزلزل رہے گا. وزیر اعظم وزیر اعظم کی پاکستان ریلویز کے نظم و نسق اور منافع بخش کمرشل استعمال کے لیے عملی اقدامات پر مشتمل جامع اور مؤثر حکمت عملی جلد مرتب کرنے کی ہدایت. نجی شعبے کے ماہرین سے مشاورت معاشی اصلاحات کا حصہ ہے. معیاری ریلوے نظام معاشی ترقی اور ملکی آمدنی بڑھانے میں کردار ادا کر سکتا ہے. وزیر اعظم علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح. صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاح کیا. راوی لاؤنج، داخلی لابی، مرکزی ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو. اسٹیٹ لاؤنج کو جدید سہولیات کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے. ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی بریفنگ. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی نائب وزیر بین الاقوامی شعبہ کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات کے بھرپور انعقاد کا فیصلہ. ثقافتی تعاون، عوامی و تعلیمی روابط اور نوجوانوں کے تبادلوں کو فروغ دینے پر اتفاق. وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد. شہید کی والدہ، بھائیوں اور کمسن بیٹوں سے ملاقات. میجر انور کاکڑ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا.
मेरा बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। वालिदा शहीद मेजर अनवर काकड़। आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालदा हैं। कौम को आप पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत और एक स्कूल को शहीद मेजर अनवर काकड़ के नाम से मंसूब किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी। We've added a 550-bed surgical complex and OPD. We have the CyberKnife technology for the treatment of cancer. We've served patients from 178 cities and 24 countries. सिंध में सेहत की आलमी मयार की सहूलतें मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सूबे में NICVD तर्ज के 11 हस्पताल कायम किए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा जनूबी एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा एमरजेंसी सेंटर है। जिगर, कैंसर, कार्निया जैसे महंगे इलाज गंबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुफ्त दस्तयाब हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल। पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब और बड़ी तादाद में महाजरीन जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ा। उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क के तहत इकदाम कर रहे हैं। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी बड़ा चैलेंज है। बच्चों को यकसां तरक्की के मौक़े की फराहमी के लिए वफाक और सूबों की सतह पर इकदाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का स्पेन में तकरीब से खिताब। PTV में तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। इस वक्त इदारे पर किसी किस्म की कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। एंकर्स के मामले में मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PTV में तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड पहली मरतबा ऑटोमेशन के जरिए महफूज किया गया है। PTV स्पोर्ट्स चैनल बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। कायमा कमेटी बराए इत्तलात की ज़ैली कमेटी का PTV में माली और इंतजामी सूरत हाल, इंसानी वसाइल और इदारा जाती इस्लाहात जारी रखने की हिदायत। भारतीय आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्जामात सख्ती से मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। कुलभूषण यादव का मामला भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान ईरान के अमन इस्तेहकाम की हिमायत करता है। उम्मीद है ईरान बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कश्मीरी मुसलमान तलबा की काबिलियत जुर्म बन गई। इंतहा पसंद हिंदुओं के दबाव पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद। मुसलमान तलबा को दाखिले देने पर दाएं बाजू के इंतहा पसंद हिंदू ग्रुपों और BJP रहनुमाओं के एहतजाज पर मेडिकल कॉलेज की मंजूरी वापस ले ली गई। वाक़े ने तालीम में मजहब और सियासत के बढ़ते असर रसूख पर संगीन सवालात उठा दिए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर जारी। गुज़श्ता बरस के दौरान भारत में मावराए अदालत कार्रवाइयों में 50 मुसलमान शहीद। मकबूजा कश्मीर, आसाम, उत्तर प्रदेश और दीगर इलाकों में 17 से ज़ायद मुसलमान और 2 मासूम बच्चे रियासती दरिंदगी का निशाना बने। मुसलमान मुखालिफ नफरत अंगेज बयानात, हिंदुत्वा, तशद्दुद और रियासती जबर में खतरनाक इजाफा भारतीय क़यादत के मुतासिबाना एजेंडे को जाहिर करता है। आलमी इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। सफाक भारतीय फौज का चेहरा मकबूजा कश्मीर में पूरी तरह से बेनकाब। भारतीय फोर्सेस मावराए अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियों, जाली मुकाबलों, खवातीन की बेहुरमती, घरों के मिसमारी और जबरो इस्तेबदाद की दीगर कार्रवाइयों में मसरूफ। भारतीय फोर्सेस ने 1947 से अब तक 4.5 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया। भारतीय हुकूमत ने काले कवानीन के जरिए कश्मीरियों के तमाम हुकूक छीन लिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को सजाए मौत देने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर को खबरदार करते हैं कि जून वाली गलती ना दोहराएं। अमरीकी सदर ने वही गलती की तो नतीजा भी वही निकलेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू।
مصر کے ثالثی میں غزہ کے لیے 15 رکنی فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی تشکیل. کمیٹی کا مقصد غزہ کے انتظامی امور سنبھالنے سمیت جنگ بندی کو مستقل بنانا، انسانی بحران کا حل اور غزہ کے جامع تعمیر نو کو ممکن بنانا ہے. کمیٹی بورڈ آف پیس کی زیر نگرانی کام کرے گی. سربراہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. غزہ سیز فائر دوسرے مرحلے میں داخل. اسرائیلی فوج کا مرحلہ وار انخلا اور حماس کو غیر مسلح کرنا شامل. عالمی برادری اور امریکہ اسرائیل کی امن عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کو ناکام بنائے. غزہ کا انتظام کمیٹی کے حوالے کرنے اور تعاون کے لیے تیار ہیں حماس. گرین لینڈ کا امریکی ملکیت بننے سے انکار. گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ کی واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات. امریکہ سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں مگر گرین لینڈ امریکی ملکیت نہیں بننا چاہتا. گرین لینڈ وزیر خارجہ. امریکی صدر گرین لینڈ پر قبضے کے لیے بضد. ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. افغان طالبان قیادت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے. طالبان رجیم کے اندر موجود حکومتی عہدیدار ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے. بی بی سی کو موصول ہونے والی ایک آڈیو ریکارڈنگ میں انکشاف. اختلافات کے نتیجے میں عمارت گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی. اندرونی اختلافات سب کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. ہیبت اللہ اخنزادہ. افغانستان میں غربت اور حکومتی تسلط کا بڑھتا اثر. بغاوت کا خدشہ. طالبان رجیم کے حکومتی تسلط، غربت اور بے روزگاری پر سابق افغان وزیر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. عوام روزگار اور اقتصادی بحران پر جواب دہی چاہتے ہیں. یونیسیف اور ورلڈ بینک کے مطابق نصف سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں. ہر 4 میں سے ایک نوجوان بے روزگار ہے. سابق افغان وزیر. مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. کل سے 19 جنوری کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش ہو سکتی ہے. 18 سے 23 جنوری کے دوران مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری اور پنجاب بھر میں بارش کا امکان. 21 اور 22 جنوری کو کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، کلا عبداللہ، نوشکی، ہرنائی اور یوب میں درمیانے سے شدید برفباری کا امکان. 22 اور 23 جنوری کو کراچی، حیدرآباد، دادو، جیکب آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش کی توقع. محکمہ موسمیات. پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کل سے شروع. فزیکل ٹکٹس 19 جنوری سے دستیاب ہوں گے. 3 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. میچز 29 جنوری، 31 جنوری اور 1 فروری کو شیڈول. آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کل 3 میچز ہوں گے. پاکستان اور انگلینڈ کی انڈر 19 ٹیم ہرارے میں مد مقابل ہوں گی. میچ دن 12:30 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. آسٹریلیا اور آئرلینڈ وینجک میں آمنے سامنے ہوں گے. ایونٹ کا چھٹا میچ افغانستان اور جنوبی افریقہ کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان ہوگا. آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کی تنزانیہ کو 5 وکٹوں سے شکست. ویسٹ انڈیز نے 123 رنز کا ہدف 21 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. بھارت کی امریکہ کے خلاف ڈک ورتھ میتھڈ کے تحت 6 وکٹوں سے کامیابی. زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ. میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست. اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ بھارت کی میزبانی کھلاڑیوں کے لیے درد سر بن گئی. انگلینڈ کے عادل رشید اور ریحان احمد تاحال ویزوں کے منتظر. انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ویزوں کے لیے تمام کارروائی پہلے ہی مکمل کر لی تھی. برطانوی میڈیا. انگلینڈ کا پہلا میچ 8 فروری کو نیپال کے خلاف ممبئی میں شیڈول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں سلما کوثر. کھیل اور کھلاڑی کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ سلمان حیدر. اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اٹھ کے پرچید کا سامان سفر تازہ کریں. نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں.
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को आसान, शफाफ और तेज़ तरीन खदमात की फराहमी के लिए पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया है। इस इनकलाबी कदम से शहरियों को 60 से ज़ायद अवामी खदमात एक ही छत तले दस्तयाब होगी। रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज अवामी खिदमात के निज़ाम में इनकलाबी कदम। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कायम पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर में शहरियों की सहूलत के लिए 60 से ज्यादा अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब हैं, जो शफाफ, तेज तर और आसान तरीकाकार के तहत हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कायम किए जाने वाले पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान के विजन की रोशनी में हुकूमत ने आज़रबाईजान के इश्तराक से इस अवाम दोस्त ख्वाब को महज 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पाए तकमील तक पहुँचाया। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहरियों की सहूलत के लिए 60 से जायद अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब हैं। मरकज में खवातीन, बुजुर्ग शहरियों और खसूसी अफराद के लिए स्पेशल काउंटर्स भी बनाए गए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि खिदमत, सहूलत और तेज तर खिदमात का दायरा कार मुस्तकबिल करीब में दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अवाम को सहूलियात और खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा, और मुझे पूरी तवक्को है कि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनको मास्टर्स ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है और वो अज़रबाईजान में ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो खुश इखलाकी और एहतराम और ख़िदमत ये आपका इंतहाई अहम कैरेक्टर का हिस्सा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए गरां कदर तोहफा है। I would like to thank from the core of my heart my very dear brother President Ilham Aliyev for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। तकरीब से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का कयाम अच्छे टीम वर्क का नतीजा है। इस मरकज का मकसद आम लोगों के लिए आसान, शफाफ और तेज तर खिदमात यकीनी बनाना है। It was a teamwork that made it possible, and sir, I think the whole place that you see, it is going to transform the citizen experience। और जो एक शहरी का हुकूमत से ताल्लुक होता है वो उसके सिटीजन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस से आता है, एंड दिस इज वेयर इट ऑल चेंजेस। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के खिदमत मरकज के चेयरमैन रमेज मेहदीयोफ ने कहा कि इस्लामाबाद में कायम किया गया खिदमत मरकज अवाम को सहूलियात की फराहमी के हवाले से अहम संग मील है। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज में मुख्तलिफ महकमों और उनसे मुतल्लिक खिदमात तक अवाम की रसाई आसान बनाई गई है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बहरीन में इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पाकिस्तान के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन और इदारा जाती रवाबित बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से। मनामा में बहरीन इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि बहरीन इक्तिसादी डेवलपमेंट बोर्ड काबिल तारीफ है। इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बहरीन की माशी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान बहरीन के तरक्याती सफर को कदर की निगाह से देखता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सरमायाकारों के लिए मौसर प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में ज़राअत, IT, तवानाई, मादनियात, लॉजिस्टिक्स और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू खित्तों को जोड़ने में कलीदी हैसियत रखता है। इलाकाई अमन सलामती पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और शराकतदारियों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इजलास में बहरीन के वफ़द की क़ियादत डिप्टी वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने की।
इदारे के दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन के वजीर खजाना ने इक्तिसादी डेवलपमेंट बोर्ड की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने इदारे की कारकर्दगी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल करते हुए पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बहरीन के वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब सैयद मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक ने मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर जोर देते हुए पाकिस्तान और बहरीन के इलाकाई सलामती के लिए अमली ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया। बहरीन के फरमरवा शाहमद बिन ईसा अल खलीफा ने सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया। सदर मुमलिकत खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी के हमरा शाहमद बिन ईसा अल खलीफा की खसूसी दावत पर शाही अस्तबल भी गए, जहां उन्हें आलमी शोहरत याफ्ता खालिसुल नस्ल अरबी घोड़ों का मुशाहिदा कराया गया। सदर मुमलिकत को बताया गया कि घुड़सवारी और अरबी घोड़ों के विरसे की मारूफ सरप्रस्त की हैसियत से शाह बहरीन कदीम बहरीनी नस्ल के घोड़ों के तहफ़्फ़ुज़ की खुद निगरानी करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नायाब नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाह बहरीन की ज़ाती काविशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और बहरीन दोनों की मुश्तरका सकाफती और इस्लामी तारीख है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म 13-14 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 8 खारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। जिला कुरम में खुफिया इतलात की बुनियाद पर एक और ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खारिज को हलाक कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बनू और कुरम में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ 2 अलग अलग कामयाब कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहते हुए कहा कि अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर सेन हाइयेन ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी वफ़द का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह दौरा पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के हवाले से गैर मामूली अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि इस साल का आगाज़ पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के बीजिंग के कामयाब दौरे से हुआ, जिसके बाद वज़ीर दाखिला ने शंघाई का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ फौलाद की तरह मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुआवनत बिलखुसूस सीपैक के तहत ताउन को सराहा और सीपैक के अगले मरहले के बरवक्त नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर यू एन बैंक और चीनी क़यादत के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया और चीन के सदर को रमासाल पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत का अयादा किया। चीनी नायब वज़ीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी के लिए सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद करने में वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा और पाकिस्तान में इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमती खदमात के इकोसिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशा हैं। वफाकी हुकूमत की खदमात को एक ही छत तले फ्राहम करने के लिए मुल्क भर में मज़ीद आसान खदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। आज़रबाईजान के पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस के चेयरमैन अलवी महदेव की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि आसान खदमत मरकज़ बनाने में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव और हुकूमत की मुआवनत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि आसान खदमत मरकज़ में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सफारतखानों में आसान खदमत मरकज़ के काउंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खदमत मराकज़ में बाकायदा कारकर्दगी के अहदाफ तय करके हर सेमाही में थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा मरहले में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आसान खदमत मरकज़ बनाए जाएंगे। हाज़री वफ़द ने बतौर खादिम पंजाब और अब बतौर वज़ीर आज़म मुल्क में इस्लाहात के नफाज और निज़ाम में जिद्दत लाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। वफ़द ने बताया कि इस्लामाबाद और आज़रबाईजान के दरमियान हफ्तावार 3 परवाज़ों के अलावा मार्च में 1 परवाज़ का इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के इस इक़दाम का खैर मकदम किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी मयार के कमर्शियल मुआसराती निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। पाकिस्तान में मयारी रेलवे निज़ाम माशी तरक्की और मुल्की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने के लिए निजी शोबे के माहिरीन के मशावरती इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजी शोबे के माहिरीन से मशावरत हुकूमत के माशी इस्लाहात का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ कलील वसाइल के बावजूद तनदही और मेहनत से ही मौसर कारकर्दगी दिखा रही है, जिसके लिए वफाकी वज़ीर रेलवेज़ और उनकी टीम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ को मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने से ये इदारा सनत और तजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारों की सहूलत के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान रेलवेज़ का मयारी निज़ाम न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि इलाकाई सनत और तजारत और ताउन में भी कलीदी किरदार रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी हिदायत की कि पाकिस्तान रेलवेज़ तमाम मुतालिका आकाइयों और इदारों से बाहमी मशावरत के बाद अमली इक़दामात पर मुश्तमिल रोड मैप अगले हफ्ते पेश करे। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक तरक्याती कामों के लिए हुकूमती फ़ंड्स की दस्तयाबी को दहाइयों तक नज़रअंदाज किया गया, जो अफसोसनाक है। अगले साल के PSDP में रेलवेज़ के तरक्याती मनसूबों के मुतनासिब बजट दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे के मुनाफा बख्श कमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का भरपूर जायज़ा लेने और मुनज़्ज़म नज़्म नस्क़ के लिए अमली इक़दामात पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली जल्द मुरतब करने की हिदायत की। इजलास में शरीक निजी शोबे के माहिरीन ने रेलवेज़ की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने और उसके कमर्शियल इस्तेमाल के तनाज़ुर में मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा भी किया। सेक्रेटरी डिफेंस मोहम्मद अली ने मौजूद मेहमानों का खैर मकदम किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल जीशान सईद ने ब्रीफिंग में एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के मंसूबे के बारे में आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मरकजी हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई है। स्टेट लाउंज को जदीद सहूलियात के साथ खूबसूरत शक्ल दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी शाही खानदान से शहजादी हिंद बिनते सऊद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूमा के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब वज़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के किरदार को सराहा। फरीकैन ने रवा माह चीन में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की जानिब से पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के जश्न के बाकायदा आगाज़ का खैर मकदम किया। मुलाकात में आला सतह रवाबित का तसलसल बरकरार रखने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में एकनिक का इजलास हुआ, जिसमें 117 अरब मालियत के मंसूबों की मंजूरी दी गई। मंजूर शुदा मंसूबों में समाजी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, खदमात की फ़राहमी बेहतर बनाने के लिए तवानाई, बुनियादी ढांचे और नकलो हमल में अहम इक़दामात समेत सेहत सहूलत प्रोग्राम की 30 जुलाई तक तौसी शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका वज़ारतों को इक़दामात की मुनासिब मनसूबाबंदी, नफाज़ और पायदारी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अवामी फलाह सिंध हुकूमत का विजन है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन के हवाले से ब्रीफिंग की तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। ईवान सदर इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और अपने आइंदा के विजन के हवाले से ब्रीफिंग में बताया कि सूबे में सेहत की आलमी मेयार की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। We've added a 550 bed surgical complex and OPD, 120 bedded psychiatric ward and OPD, 110 bedded neurology ward. We have the CyberKnife technology for the treatment of cancer. We've served patients from 178 cities and 24 countries. Less than 50% of our patients who receive this treatment are from the province of Sindh. 31% are from Punjab, 11% from Khyber Pakhtunkhwa, 7% Balochistan, and 5% are international patients. तालीम के शोबे में इस्लाहात का जिक्र करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था 2022 के सैलाब में सिंध में तालीम के शोबे से मुंसलिक 50% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जिसे अब बहाल कर रहे हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए बच्चों को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। 30 public universities in the province of Sindh established by the Pakistan People's Party government. Sindh was the first province to pass legislation for the Department of Empowerment of Persons
with disabilities. And today, the Sindh government's Sindh Revenue Board has collected 307 billion rupees. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध हुकूमत आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए फैमिली प्लानिंग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गुर्बत के खात्मे और आवाम को मुआशी लिहाज से बाइख्तियार बनाने के लिए BISP के जरिए कमजोर तबकात को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए सिंध हुकूमत 21 लाख घर तामीर कर रही है। ज़राअत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेनजीर हारी कार्ड मुतारफ करवाया गया है। आबपाशी के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने के साथ साथ पानी ज़ख़ीरा करने के लिए छोटे और बड़े डैम तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुअस्सर इक़दामात और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम मुख्तलिफ शहरों में मुतारिफ करवाया गया है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध विजन के तहत फलाहो बहबूद के मंसूबों पर काम जारी है। सिंध के अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 20 जनवरी के बाद पंजाब में बारिशें मुतवक्के हैं। अज़का मकसूद रिपोर्ट करेंगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह के औकात में धुंध का राज रहा और दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर में हल्की धूप से दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखने में आया। ताहम दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहा। लाहौर का टेम्परेचर जो है इसी तरह मिनिमम टेम्परेचर 2.2 अराउंड के करीब रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 से 13 डिग्री के दरमियान रहेगा। लाहौर में तवक्को की जा रही है कि 20 तारीख को जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब के अक्सर इलाकों में सुबह और शाम के औकात में शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर हुई और सड़कों पर ट्रैफिक कम रही। धुंध के बायस मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह कम होने की वजह से कई मकामात पर मोटरवे को भी बंद रखा गया। शदीद सर्दी के पेश नजर तिबी माहिरीन ने कहा है कि शहरी बाहर निकलते वक्त सर और सीना ढांप कर रखें। खुश सर्दी जब आती है तो इसमें ज़्यादातर बीमारियाँ ये नाक, मुँह, ये गला, इसकी बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं और फिर स्किन की आ जाती हैं, ड्राइनेस काफ़ी हो जाती है। फिर ये ज़्यादा अब हैवी है, गर्म चीज़ें खानी शुरू करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन खबरों की तरदीद की है, जिनमें पंजाब में आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे जाने के दावे किए जा रहे हैं। ताहम मामूल के मुताबिक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। तबी माहिरीन के मुताबिक सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए गर्म पानी पिएं, ऊनी लिबास पहने और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा हफ्ते वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। कल से 19 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ अजला मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। खित्ता पठवार और कश्मीर में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लहस करदू -11, गोपिस -9, अस्तोर गिलगित -8 और बिगरोट में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 1, लाहौर 3, कराची 12, पेशावर 2, कोयटा -1, मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 4, गिलगित -8, स्कर्दू -11, मुजफ्फराबाद 0, जबकि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپا عشرت فاطمہ کے گھر حاضر ہوا ہوں اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ نیوز کاسٹنگ میں نشریات کے حوالے سے براڈ کاسٹنگ سروسز کے حوالے سے ان کی ایک پہچان ہے, ایک شناخت ہے. ہر پاکستانی ایسوسیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ اور جس طریقے سے انہوں نے پورا ان کا کریئر ہے 4.5 ڈیکیڈ کا, 45 سال کا, جس میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی اس ملک کے لیے. تو پاکستان کا ہر طبقہ, ہر شخص, ہر بچہ بڑا وہ جانتا ہے کہ شی نیڈز نو انٹروڈکشن. تو میں ان کے پاس ان کے گھر حاضر ہوا تھا یہ درخواست کرنے کہ ایک تو گلہ کرنے کہ یہ بڑی بہن ہے ان کو, تو انہوں نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو میں نے یہ کہا کہ اور یہ 10 بدستہ گزارش کی کہ آپ تو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان ہے اور انہوں نے 10 سال پہلے پاکستان ٹیلی ویژن چھوڑا 2016 میں. ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایز اے مینٹور واپس آئیں اور پاکستان ٹیلی ویژن میں آئے. ریڈیو چھوڑنا ان کا فیصلہ تھا, اس کو ہم قبول کرتے ہیں, بٹ یہ آئیں پاکستان ٹیلی ویژن میں مینٹور کے طور پہ, ایک بڑے کے طور پہ. یہ ہماری جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, اردو زبان کے فروغ کے لیے, ان کو سکھانے کے لیے کہ نیوز کیسے پڑھی جاتی ہے انڈر پریشر, اچھے حالات میں, برے حالات میں, کوئی قدرتی آفت آ جائے خدا نہ خواستہ. بیکاز انہوں نے اتار چڑھاؤ زندگی کے بہت دیکھے ہیں. تو ان کے آنے سے ہمیں بھی حوصلہ ملے گا اور پی ٹی وی کے ادارے کو تقویت ملے گی اس ادارے کی بہتری کے لیے. اور دیکھیے ان کا کبھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا, ان کا کوئی سیاسی جھکاؤ نہیں رہا, انہوں نے پروفیشنلی اپنی پوری زندگی گزاری ہے. تو اس لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ادارے میں آئیں گی تو ایک نیوٹرلٹی بڑھے گی, لوگوں کے اندر ایک حوصلہ ہوگا. ینگ بچے بچیاں جو آج کل خبریں پڑھتے ہیں, تو یہ ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کی تربیت کے لیے انہوں نے مہربانی کی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے ان کا کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن واپس آ رہی ہیں. تو آپ کو سرپرائز بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان ٹیلی ویژن جب یہ آتی ہیں ایز اے مینٹور, ایز اے گائیڈ, ایک بڑے کے طور پہ, ایک تربیت کرنے والے کے طور پہ, تو پاکستان ٹیلی ویژن بھی ان کو ویلکم کرے گا انشاءاللہ. آپ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور بہت میرا حوصلہ بڑھا ہے. میرا نیوز ریڈنگ کا جو کام ہے یہ میرے لیے بالکل ایسے ہے کہ یہ میری زندگی ہے. اور یہ فیصلہ جو میں نے کیا یہ بھی میں نے بہت ہی مجبوری سے کیا تھا. اور اگرچہ میں اب اس مقام پر ہوں جہاں پر ہم لوگوں کا وائنڈ اپ کا وقت ہے, لیکن میں نے بہت محبت سے اس کام کو ابھی تک کیا ہے اور کرنا چاہتی ہوں جب تک کہ میری سانسیں نہیں ٹوٹتی. تو اور میں سکھانا بھی بہت چاہتی ہوں کیونکہ جو کام ہم نے ٹھوکروں سے سیکھا ہے اگر وہ کوئی آسانی سے سیکھ لے تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی. اور میں چاہوں گی کہ آئندہ بھی جو باصلاحیت لوگ ہیں کسی بھی شعبے میں ان کو آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو حوصلہ دیں اور ان کا سہارا بنیں, ان کی دل شکنی نہ ہو. کیونکہ جو بھی باصلاحیت شخص ہوتا ہے اس کو صرف اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, اس کو کام کرنے کے لیے جگہ ملے. لوگوں نے تو بہت پیار کیا, اللہ کا بہت احسان ہے, لیکن آپ نے جو عزت افزائی کی اس کا بھی بہت شکریہ. میں کوشش کروں گی کہ جو بھی تھوڑا بہت میں کر سکوں وہ اپنے ادارے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اس شعبے کے لیے میں ضرور کروں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, بڑا مشکل. تھینک یو سو مچ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سینئر براڈ کاسٹر عشرت فاطمہ کے گھر گئے. اس موقع پر وہ گفتگو کر رہے تھے اور عشرت فاطمہ بھی گفتگو کر رہی تھی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے عشرت فاطمہ کی جو پروفیشنل خدمات ہیں, پیشہ ورانہ خدمات, ان کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں نشریات کے حوالے سے ان کی ایک الگ پہچان ہے. پاکستان کا بچہ بچہ عشرت فاطمہ کو جانتا ہے اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن آئیں. اور ناظرین اب آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی بہترین نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ کے شاندار کریئر پر ایک خصوصی رپورٹ. پاکستان ٹیلی ویژن شعبہ خبر کو ہمیشہ اپنی خبر کے مستند ہونے پر فخر رہا ہے, لیکن اسی خبر کو بہترین تلفظ اور ادائیگی سے اپنے ناظرین تک پہنچانے کا سہرا جن کے سر رہا ان میں ایک بڑا نام عشرت فاطمہ کا ہے. عشرت فاطمہ نے 80 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے خبریں پڑھنے کا آغاز کیا اور جلد ہی اپنے ہم عصروں میں الگ پہچان بنا لی. ان کا دھیما لہجہ, آواز کا زیر و بم, تلفظ اور ادائیگی بے مثل تھی. اس پر ان کی جامع زیبی, دوپٹہ اوڑھنے کا انداز اور ہم رنگ قلم اسکرین کو سجا دیتا تھا. عشرت فاطمہ کے لاکھوں پرستاروں کو ہر روز ان کے بلیٹن کا انتظار رہتا تھا.
इशरत फातिमा ने 2000 के वस्त में PTV को खैरबाद कहा, लेकिन रेडियो पाकिस्तान से इनकी वाबस्तगी बरकरार रही। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। 45 साल बाद इशरत फातिमा ने रेडियो से भी रुखसत ले ली। गुज़श्ता 4 तिहाइयों से ज्यादा अरसे से रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन ने मेरी झोली को आपकी तरफ से मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत से माला माल किए रखा। आज मैं रेडियो पाकिस्तान के साथ अपनी 45 साला रफाकत को खुदा हाफिज कह रही हूँ। आपसे रुखसत लेने से पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आलमी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने मनामा में बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा किया और पाकिस्तान बहरीन के दरमियान सकाफती, सफारतकारी, ताउन, तालीमी तबादलों और आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया। ज़िशान अली भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने मनामा में बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा किया। बहरीन की हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के वजीर ममलकत आमना बिनते अहमद उनके हमरा थीं। म्यूजियम पहुंचने पर डायरेक्टर जनरल म्यूजियम एंड कल्चर फरा मोहम्मद मतर और डायरेक्टर कम्युनिकेशंस एंड पार्टनरशिप्स हानी अली बहजाद ने खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो जरदारी को दोनों म्यूजियम का तफसीली दौरा कराया गया, जहाँ बहरीन के शानदार सकाफती विरसे, तारीखी और कदीम तहजीबी रवायात को मौसर अंदाज में पेश किया गया था। म्यूजियम में बहरीन की आलमी शोहरत जाफ्ता समुद्री जिंदगी और मोतियों से मुतालिक रवायात को भी नुमाया किया गया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तारीख की हिफाजत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये शिनाख्त, इत्तेहाद और आइंदा नस्लों के लिए रहनुमाई का जरिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती सफारतकारी, म्यूजियम के हवाले से ताउन, तालीमी तबादलों और आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन के वसी इम्कानात को भी उजागर किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बहरीन में किंग हमद यूनिवर्सिटी अस्पताल में कायम मिलिट्री अस्पताल माइक्रो स्कूल का भी दौरा किया। दौरे के दौरान खातून अव्वल को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि माइक्रो स्कूल के जरिए कम उम्र मरीज इलाज के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी तालीमी पेशरफ्त बरकरार रहती है बल्कि ज़हनी और जज्बाती सेहत को भी तकवीत मिलती है। इस मौका पर आसिफा भुट्टो जरदारी ने इंटरैक्टिव क्लासरूम और जदीद तालीमी सहूलियात का मुशाहिदा किया। उन्होंने अमले और बच्चों से मुलाकात की और असातिज़ा और अस्पताल के अमले के किरदार को भी सराहा। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से वर्ल्ड डायलॉग फोरम के CEO गजनफर हाशिम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और फोरम के अप्रैल में वाशिंगटन DC में होने वाली चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तफसील बताई। पार्लिमानी ताउन, तजारत, इक़्तिसादी ताल्लुकात और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर होगी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने में फ़ोरम के किरदार की तारीफ़ की। वर्ल्ड डायलॉग फ़ोरम के सदर ने कायम मकाम सदर को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस मुस्तकिल करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वक्कार हैदर आवान, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस सैयद एहसन रज़ा काज़मी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफ़र, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद उवैस खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबर गुल खान को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह भी दी। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले मेजर अनवर काकड़ शहीद की वालिदा, भाइयों और कमसिन बेटों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुक्टी ने मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा ने कहा कि मेरा बेटा शेर था जो वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फख्र है और मेरे 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं और पूरी कौम को आप पर फख्र है।
انہوں نے کہا کہ آپ جیسی بلند حوصلہ والدہ کو جذبہ دیکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھ گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اعلان کیا کہ شہید میجر انور کاکڑ کے بھائی خداداد خان کو سرکاری ملازمت دی جائے گی، جبکہ ایک سکول کو بھی میجر شہید انور کے کاکڑ کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر اور سرمایہ افتخار ہیں اور قوم اپنے ہیروز کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کے واجبات ادا کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ادارے پر کسی قسم کی کوئی رقم واجب الادا نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں کنوینر ندیم عباس کی صدارت میں ہونے والے اطلاعات و نشریات کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی وی میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا بجلی کے بلوں سے پی ٹی وی فیس کے خاتمے کے بعد مختلف سوالات اٹھائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ پی ٹی وی فیس کے خاتمے کے بعد ادارہ نہیں چل سکے گا۔ وزارت کے پاس فنڈز موجود ہیں۔ ذیلی کمیٹی کو پی ٹی وی کی مالی اور انتظامی صورتحال، انسانی مسائل اور ادارہ جاتی اصلاحات پر بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس وقت اسکرین پر موجود تمام اینکرز کی تقرری سفارش پر نہیں میرٹ پر کی گئی ہے۔ اگر کسی اینکر کو لایا گیا ہے تو اس کے لیے مسابقتی تنخواہ دی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی وی سپورٹس چینل بہتر انداز میں چل رہا ہے۔ اس کی سربراہی عالیہ رشید کا ان کے پاس ہے اور سپورٹس جرنلزم میں عالیہ رشید ایک معتبر نام ہے۔ انسانی وسائل کے شعبے میں اصلاحات پر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی وی میں ڈائریکٹر ایچ آر تعینات کیا گیا ہے۔ تمام ملازمین کا پہلی مرتبہ ریکارڈ آٹومیشن کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ تمام ملازمین کی تفصیلات فوری دستیاب ہو جاتی ہیں۔ سیکریٹری اطلاعات و نشریات اشفاق احمد جلیل نے اجلاس کو پاکستان ٹیلی ویژن کے بورڈ کی تشکیل پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ منظوری کے لیے سمری کابینہ میں جائے گی۔ ذیلی کمیٹی نے وزیر اطلاعات و نشریات کے اجلاسوں میں باقاعدہ شرکت کو سراہا اور ادارہ جاتی اصلاحات کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھارتی آرمی چیف کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کے لیے مسلسل کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن یادو کا معاملہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی نیٹ ورکس کے ذریعے دہشت گردی کی معاونت دستاویزی حقیقت ہے۔ بھارت کو اندرونی انتہا پسندی اور ریاستی اسلاموفوبیا پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران کی صورتحال سے متعلق پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ایران کو پرامن اور مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارتی عدالت کی جانب سے آسیہ اندرابی کو سزا کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ظالمانہ قوانین کے ذریعے کشمیری قیادت کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے جدوجہد کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے فکری اور عملی سردباب کے لیے قائم کی گئی قومی پیغام امن کمیٹی نے مختصر عرصے میں نمایاں اور مؤثر سرگرمیوں کے ذریعے قومی سطح پر اپنی موجودگی منوا لی ہے۔ کمیٹی کا بنیادی مقصد تمام مکاتب فکر اور اقلیتی برادریوں کو ایک مشترکہ قومی پلیٹ فارم فراہم کرنا اور نفرت، تشدد اور انتہا پسندی کے بیانیے کا مؤثر توڑ کرنا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے 12 اور 13 جنوری کو وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے اہم اور تفصیلی ملاقاتیں کی، جن میں ضلعی سطح پر کمیٹیوں کے قیام، مدارس کے نصاب میں قومی بیانیے کی شمولیت اور میڈیا کے مؤثر استعمال پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقاتوں میں رمضان المبارک کے دوران مذہبی ہم آہنگی کے فروغ، فرقہ وارانہ مواد کے فوری تدارک اور سوشل میڈیا پر ریاست مخالف بیانیے کے مقابلے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاسوں میں آئندہ جمعے کو یوم پیغام پاکستان اور پیغام پاکستان ویک منانے کا اعلان کیا گیا۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے کشمیر اور غزہ کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق کرتے ہوئے مساجد، مدارس اور جامعات میں آگاہی نشستیں بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ ناظرین، بھارت آج اپنا 78واں یوم فوج منا رہا ہے، تاہم دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہونے کے دعوے دار ہندوستان کی فوج اور پیراملٹری فورسز کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں بدترین مظالم کا مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کا صفاق چہرہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارتی فورسز مقبوضہ علاقے میں ماورائے عدالت قتل، بلا جواز گرفتاریوں، جعلی مقابلوں، خواتین کی بے حرمتی، گھروں کی مسماری اور جبر و استبداد کی دیگر کارروائیوں میں مصروف ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے 1947 سے اب تک 4.5 لاکھ سے زائد کشمیری شہید کیے ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت اور قابض انتظامیہ نے کالے قوانین کے ذریعے کشمیریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیریوں
इसराइलियों के जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक को मुनज़्ज़म तरीके से छीन लिया गया है, जबकि उनकी ज़मीनें, मकानात और दीगर जायदादें जब्त की जा रही हैं। माहिरीन कानून ने तिहाड़ जेल में कैद दुख्तरान मिल्लत के सरबराह आसिया अंदराबी और उनके साथियों नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी के खिलाफ भारतीय हुकाम के ज़ालिमाना रवैये को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये तीनों गुज़श्ता 8 बरस कैद में हैं और अब इन्हें झूठे इल्ज़ामात में सजाएं दी जा रही हैं, जो कि बदतरीन सियासी इंतकाम है। स्पोर्ट्स बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स 19 जनवरी से दस्तयाब होंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। तमाम मुकाबले कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। कैंगरूज 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगे। सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी को होगा, दूसरा मैच 31 जनवरी, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। मैचेस शाम 6 बजे शुरू होंगे। मार्च 2022 से अब तक ऑस्ट्रेलिया का यह तीसरा दौरा पाकिस्तान है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में कल 3 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के चौथे मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमें हरारे में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 12:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड विंडहॉक में आमने सामने होंगे। इवेंट का छठा मैच अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने तंजानिया को 5 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। विंडहॉक में खेले गए मैच में तंजानिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 34 ओवर्स में 122 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनर्स डायलॉन थकरार 26 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। जोबन पैट्रा 19 और खालिद जोमा 12 रन बना सके। वेस्ट इंडीज 19 अंडर 19 की जानब से वाइटल डेविस ने 3 विकेटें हासिल की। शैकॉन बैले ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज अंडर 19 ने 123 रन का हदफ 21 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर स्टैनिस फ्रांसिस ने 52 रन की इनिंग्स खेली। शैकॉन बैले मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस मंसूख हो गया। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को डिक वर्थ लुइस मेथड के तहत 6 विकेटों से हरा दिया। बिलावे में बारिश से मुतासरा मैच में अमेरिका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 36 ओवर्स में 107 रन बना सकी। भारत अंडर 19 की जानब से हेल टेपल ने 5 खिलाड़ियों का आउट किया। बारिश के बाद भारत को 37 ओवर्स में 96 रन का हदफ मिला, जो उसने 18 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। और बयान कोंदो ने 42 रन की नॉट आउट इनिंग्स के लिए मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की मेजबानी खिलाड़ियों के लिए दर्द सर बन गई। इंग्लैंड के आदिल रशीद और रेहान अहमद ताहाल भारत जाने के लिए वीज़ों के मुंतज़िर हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आदिल रशीद और रेहान अहमद भारतीय ऑफिशियल्स की जानिब से इजाज़तनामे के मुंतज़िर हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने वीज़ों के लिए तमाम कार्रवाई ICC की जानिब से आने वाले बाज़ाब्ता दावतनामे की फौरी बात मुकम्मल की थी। आदिल राजा और रेहान अहमद फ्रेंचाइज क्रिकेट में मसरूफ़ थे। दोनों ने वीज़ों के लिए बैरून मुल्क रहते हुए दरख्वास्तें दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पहला मैच 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में शेड्यूल है। और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त